Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Virati Swaparantikam Vandayaham Shikaraho Shri Yuta Parakamelam Shri Kurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrijatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamani Hare Vancha Kapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paritanam Pavanubhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesa Shunyavadi Paschatya Deshatani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so we're going to stick with Gurudev again for our song. There were other songs there, but if I start going into these other songs, we'll spend the whole day studying songs. There was another one of those Hari Hey songs. Okay, someone like to sing? Hare Krishna. Yeah. Yes, you may sing. Namo Vishnu Pada Krishna Vishnu Krishna Pada Krishna Vishnu Krishna Bhaktivedanta Swami Gurudev Kripa Vindu Diya Karoye Dase Trinapekha Otihina Gurudev Kripa Vindu Diya Karoye Dase Trinapekha Otihina Sakala Sahane Baladiya Karo Sakala Sahane Baladiya Karo Nijamane Sprihahina Gurudev Kripa Vindu Diya Karoye Dase Trinapekha Otihina Sakale Samman Karite sakati sakale samman karite sakati dehnatho jatha jatha sakale samman karite sakati dehnatho jatha jatha Gurudev Kripa Vindu Diya Karoi Dase Trinapekha Otihina Tabe to gaibo Harinamo Sukhe Tabe to gaibo Harinamo Sukhe Aparado Have Hato Tabe to gaibo Harinamo Sukhe Aparado Have Hato Gurudev Kripa Bindu Diya Karoi Dase Trinapekha Otihina Kabe he no kripa lobhiyaye jana Kabe he no kripa lobhiyaye jana Kritartha hoibe natha Kabe he no kripa lobhiyaye jana Kritartha hoibe natha Gurudev Kripa Bindu Diya Karoi Dase
তৃণাপেক্ষা অতিহীন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি হতি দীন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন কর মোরে আত্মসাৎ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি হতি দীন কর মনে আত্মসাৎ গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে গুরুদেব Good. Thank you, Prabhu. Now, translation. Shall I read? Yes, please, Prabhu. हे गुरुदेव अपनी दया के एक बिंदु से अपने इस दास को तृण दल से भी अधिक विनम्र बना दीजिए मुझे हर प्रकार की समस्याएं तथा परीक्षाओं को सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए मुझे निज प्रतिष्ठा की कामना से मुक्त कीजिए हे भगवान मेरे स्वामी मुझे अपनी निज शक्ति से प्रेरित कीजिए कि मैं सभी प्राणियों का समुचित सम्मान कर सकूं क्योंकि तभी मैं पवित्र हरिनाम संकीर्तन परमानंद व उत्साह के साथ कर पाने में समर्थ हो सकूंगा हे भगवान मेरे स्वामी आपका यह दास कब आपकी दया प्राप्त करने का कृपा पात्र बन सकेगा मैं अधम तथा पतित शक्ति तथा बुद्धि से सर्वथा विहीन हूँ कृपया मुझे अपना लीजिए जब मैं स्वयं की योग्यता का आकलन करता हूँ तो अपने में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं पाता हूँ इसी कारण आपकी दया ही मेरे जीवन का सार है यदि आप मेरे प्रति दया भाव नहीं रखेंगे तो मैं बस रुदन करता रहूंगा और अपने जीवन की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो पाऊंगा Thank you, Prabhu. Okay, now would someone like to read text number 5, Shloka Tatparya Anuvad Tatparya. I can read Mataji. Okay, good. ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम् No, number 5. Krishneti yasya gurum tam It's manase written in Hindi. I don't know counting. Yes.
कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणातिभिश्च भजन्तम् ईशं शुश्रूषया भजनं विज्ञाम् अनन्यम् अन्ये निन्दादि शून्ये हृदम् इप्सिता संग लब्धया। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वह हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस प्रकार हुआ है। अर्चयामे हरे पूजाम या श्रद्धेय हते ना तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृति स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु द्विष्टसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षया करोति स मध्यमः। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति में ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए।
इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने से या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णवों के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतोदज्ञात कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी कैस्त्व कोविदः। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमश भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उन्हें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं, तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दिशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निस्संदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दिशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णवों की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है। तपसा ब्रह्मचारेण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचार्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छते गच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह भी संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके, तो वह गुरु स्वीकार ना करे। ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान में संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है, तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए।
कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमश ज्ञान से उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, यह कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते तो हो भक्त हईबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमश पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभ आरंभ नव दीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमश उत्तम अधिकारी से के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि निर्धारित ढंग से पूरा तो वह क्रमश उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप ना कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूजे श्रेष्ठ सब आकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करी ताहर सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अधिक अभिरुचि रखता है या जो अभ्यास वश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसका सम्मान देना चाहिए। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों का नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतः हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमश कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमश देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं।
सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र रीति नाही जाने छठ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्त अधिकारी, उत्तम मध्य कन्या श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्त के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास कृष्ण भावनामृत का शुभ आरंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्य के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथा रूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वमत मैं तद ऋतम मन्यज्ञान्याम वदसी केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता में कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमश अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरतयदा। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवन मुखे ही जीवादो, जिसका अर्थ ये है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु का स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तब भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम से प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्वंभर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निस्संदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतः ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण में अंततः पतन होता है। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से
कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुसरण करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णववत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी को पद प्राप्त ना कर ले तब तक वह उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। हरे कृष्ण। Thank you very much. माता जी। Okay, so we have this chart that Vrindavaneshwari has nicely translated for us, which summarizes all of what we've just heard. And if somebody would like to read that. I'll read, Mataji. Okay. Shri Updeshamrit 5. Oh, 1 minute, I just have to spotlight it, then you'll be able to read it, okay? Yes. Okay. उपदेशामृत के चौथे श्लोक में वर्णित 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा के आदान प्रदान को बुद्धिमत्ता पूर्वक विनयी योग में लाने के लिए मनुष्य को विवेक पूर्वक एक उचित मार्गदर्शक का चुनाव करना चाहिए। इस संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी हमें उपदेश देते हैं कि हमें वैष्णवों का यथोचित संग करना चाहिए। श्लोक संख्या 5 में श्रील रूप गोस्वामी हमें 3 प्रकार के भक्तों अर्थात कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी व उत्तम अधिकारी को पहचान कर उनसे यथोचित व्यवहार करने का उपदेश करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी श्रीमद् भागवतम 11th canto 2nd chapter text number 47। वह जिसने हरिनाम दीक्षा ली है तथा जप में प्रयासरत है, वह उसकी रुचि केवल विग्रह सेवा में है। भक्ति का निम्नतर स्तर वह जो अग्रणी भक्तों के साथ यथोचित व्यवहार नहीं करता, वह जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ है। मध्यम अधिकारी 11th canto 2nd chapter text number 46 and चैतन्य चरितामृत मध्य लीला chapter number 22 text number 67। वह जो दीक्षित है तथा निष्ठा पूर्वक भक्ति में सेवा में रत है, श्री कृष्ण ही उसके प्राणधन है। वह जो भक्तों से ही मित्रता करता है, वह जो अबोध अज्ञानियों से के प्रति दया भाव रखता है, वह जो ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहता है, वह जिसका निश्चयात्मक शास्त्रिक ज्ञान अपरिपक्व है परंतु भगवत नाम जप में उसकी निष्ठा दृढ़ है, वह जो भक्ति में सेवा के निष्पादन में अडिग है, वह जो श्रद्धावान है। उत्तम अधिकारी वह जिसका संग तथा जिसकी सेवा करना सर्वदा वांछनीय होता है, वह जो दूसरों की निंदा या तिरस्कार करने में किंचित भी रुचि नहीं रखता, वह जिसका हृदय सर्वथा विमल है, वह जो अहेतुकी कृष्ण भावनामृत में सिद्ध है, वह जो भक्ति में सेवा में एकनिष्ठ है, वह जो भक्ति में सेवा के सभी नियमों के पालन को दृढ़ता पूर्वक करता है, वह अपनी नियमित जप संख्या का पालन दृढ़ता पूर्वक करता है, वह सदा कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने के लिए चिंतित रहता है। एक उत्तम अधिकारी की चेतना अंधकार में भौतिक जगत से सर्वदा परे होती है। वह सदा भगवत चिंतन करने में मग्न रहता है तथा हरि नाम के प्रचार प्रसार करने के लिए चिंतित रहता है। वह गुरु पद का अधिकारी होता है। अधिक से अधिक लोगों का वैष्णव बनाने की उसकी योग्यता से उसे पहचाना जा सकता है। उत्तम अधिकारी के साथ पारंपरिक व्यवहार, युक्ति, श्रद्धा के साथ गृह प्रश्न करना, उनका संग करना, उन्हें सेवाएं अर्पित करना।
दीक्षा संबंधी नोट। जब कोई व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करने के प्रति गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा मनोनिग्रह के लिए संकल्पित रहना चाहिए। उसे परम सत्य की अतीन्द्रिय विषय वस्तु में रुचि लेनी चाहिए। उसे गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए तथा गुरु से गुह्य प्रश्न करने चाहिए। जब संबंधी नोट। निरपराध हरि नाम जप किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। जो कोई भी व्यक्ति निरपराध हरि नाम जप करने में प्रयासरत है उसे वैष्णव समझकर उचित सम्मान देना चाहिए। सदा हरि नाम जप करने में रत व्यक्ति को शीघ्र आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जब तक कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप निष्ठा पूर्वक नहीं करता उसे भगवत दर्शन नहीं हो सकते। निष्ठायुक्त सेवा का आरंभ जीवा से होता है, केवल नाम ही प्रसाद है। Okay. Okay, so let's go on from there. So Srimati, as usual, goes through and finds some other quotes from Srila Prabhupada that back up what's in the purport. तो श्रीमती माता जी जो कि तात्पर्य में लिखा गया है वही प्रभुपाद की कुछ बातों से उस चीज को सिद्ध करती हैं। So I won't go through all of them because they're quite repetitive. We'll just pick a couple of nice ones. तो माता जी कह रही है मैं इसमें से कुछ ही चीजें उठाऊंगी क्योंकि बाकी सारी चीजें लगभग एक जैसी ही हैं और दोहराई जा रही हैं। Those who go to the temple of the Lord and offer worshipful respect to the deity without sufficient knowledge in theological science, therefore without respect for the Lord, devotees of the Lord are called materialistic devotees. जो लोग भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भक्तों का आदर नहीं करते और यह नहीं जानते कि वैसा क्यों कर रहे हैं, उनको भौतिकतावादी बोला गया है। Devotees who have developed a mentality of genuine service to the Lord and thus make friendships only with similar devotees, show favor to the neophytes and avoid the atheists are called medium devotees, second grade. Should be, what was the last line, Mataji? Okay, no, I'm going to go back to that page. So they have a mentality of genuine service to the Lord, thus make friendships only with similar devotees, show favor to neophytes and avoid the atheists. Okay, show favor to, okay. तो जो भक्त भगवान के भक्तों का आदर करते हैं, जो नव सिखे होते हैं उनके प्रति दयावान रहते हैं, उसे भक्तों से ही मित्रता करते हैं और भौतिकतावादियों से दूर रहते हैं, उनको मध्यम अधिकारी कहा गया है। And those who see everything in the Lord and also see everything in relation to the Lord, there is nothing except the Lord, then they are called Mahabhagavatas. और जो लोग सिर्फ भगवान से ही हर किसी को भगवान से संबंधित देखते हैं और हर चीज में भगवान को देखते हैं और भगवान के अलावा वे कुछ भी नहीं जानते, उन्हें महाभागवत बोला गया है। Now, this one is quite interesting. Typically, a Kanishta Adhikari is very eager to engage his materialistic qualifications in the service of the Lord, mistaking such material expertise to be a sign of advanced devotion. Mataji, can you repeat your voice? Okay, I also have a cold and I'm also coughing like you are. Sorry for troubling you again, but the voice, it was interrupted. Okay. Typically, a Kanishta Adhikari is eager to engage his materialistic qualifications in the service of the Lord, mistaking such material expertise to be a sign of advanced devotion. जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वे ज्यादातर अपनी भौतिकता, जो उनकी भौतिकता की जो क्वालिटीज होती है, जो उनके भौतिक गुण होते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यही भक्ति में उन्नति का एक निशान है। But once he continues to serve the Supreme Lord and the devotees,
he also advances in realization and decides to dedicate all of his activities to serving more advanced Vaishnavas. और लेकिन जिस प्रकार वे धीरे धीरे भक्तों की और भगवान की सेवा करते हैं और धीरे धीरे वे उस चीज को समझते हैं, तो जो उनका आत्म साक्षात्कार है वह धीरे धीरे बढ़ता है और वे भक्ति में उन्नति करते हैं. So because these Kanishta Adhikaris have faith in Krishna as a Supreme Personality of Godhead, therefore they can also help others. क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको यह विश्वास होता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो वे दूसरों की मदद करने में सहाय रहते हैं. And because of this faith, he gradually becomes inimical to those who are opposed to the Lord. और फिर धीरे धीरे जब उनका ये विश्वास बढ़ता है तो वे उन लोगों के विरुद्ध हो जाते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते. So he gradually becomes more inimical to those who hate the supremacy of the Supreme Lord and become more attracted to the friendship of other faithful servants of the Lord. और फिर धीरे धीरे वे उन लोगों से और भी दूर हो जाते हैं जो भगवान से नफरत करते हैं और उन लोगों से आकर्षित हो जाते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं. And thus he comes towards the Madhyam stage. और फिर वे धीरे धीरे मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाते हैं. Then he sees the Vaishnavas as only friends in this morbid world and is eager to bring innocent people within the shelter of Vaishnav society. तो उसके बाद मध्यम अधिकारी के स्तर पर Can you please repeat my please? Yeah, he sees the Vaishnava as his only friends in this morbid world. और फिर वो जो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आने के बाद वैसे वैष्णवों को ही अपने मित्र के रूप में देखता है. Okay, this is not Prabhupada, that's why this language is different. This is from the 11th canto, so it's the disciples of Srila Prabhupada adding some extra English words that Prabhupada never used. तो Okay. अब जो है वो भागवतम के 11वें स्कंद से है, लेकिन ये प्रभुपाद की भाषा नहीं है, ये उनके शिष्यों की भाषा है और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द भी डाले हैं जो प्रभुपाद कभी इस्तेमाल नहीं किया करते थे. So he's eager to bring innocent people within the shelter of Vaishnav society. तो वो बहुत उत्सुक रहता है कि वह जो बाहर के लोग हैं भटके हुए उनको वैष्णवों की संगति में ला सके. And he strictly avoids associating with those who call themselves enemies of the Lord. और उसके बाद फिर उन लोगों से सख्त दूर रहते हैं जो अपने आप को भगवान का दुश्मन बताते हैं. When such intermediate qualification becomes mature, then he comes towards the stage of Uttamadhikari. और फिर जब धीरे धीरे ये सारी जो उनके अंदर गुण आने लगते हैं वह और मात्रा में बढ़ने लगते हैं, तो वह उत्तम अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाते हैं. Okay, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has warned that by envying any of the three classes of devotees, Uttam, Madhyam, or Kanishta Adhikari, one falls down to the platform of impersonalism and loses all power to benefit others or himself. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला है कि किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रकार के भक्त, चाहे वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो या उत्तम हो, यदि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं तो हम मायावादी के स्तर पर आ जाते हैं और हमारे को जो भी लाभ हो रहा होता है भक्ति करने से वह सब हम खो देते हैं. Therefore, those who are trying to advance in Krishna consciousness should not endanger their transcendental experience by unnecessarily criticizing other Vaishnavas. जो लोग कृष्ण भावनामृत के पद पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बिना बात के किसी भी वैष्णव से ना ही निंदा करनी चाहिए, ना ही उनकी बुराई करनी चाहिए, ताकि उनकी जो भक्ति में उन्नति है वह रुक न जाए. Okay. According to Jiva Goswami, since a Kanishta Adhikari cannot properly respect other devotees, he will certainly also fail to offer respects to ordinary living entities who are not even devotees. Therefore, he is useless for practical preaching work. जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी है वह भगवान के भक्तों की जो है इज्जत उस तरह से आदर नहीं कर सकता जिस प्रकार से उसे करना चाहिए, इसीलिए वह अन्य जीवों का भी आदर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वह जो है प्रचार के लिए उत्तम नहीं होता.
However, if his faith is in the Vedic literatures and he tries to understand the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, he will gradually be elevated to the second class and first class stages. तो फिर कहते हैं लेकिन अगर उनका शास्त्रों में जो विश्वास है वह बहुत ज्यादा दृढ़ होता है और वे शास्त्र जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम समझने की कोशिश करते हैं तो वे धीरे धीरे मध्यम और उत्तम अधिकारी के स्तर तक भी आ सकते हैं. Okay. When you become, this is Prabhupada again, when you become fully Krishna conscious by worshipping the deity regularly, as we've got the prescription to rise early in the morning, offer Mangalarti, then Kirtan in class, in this way practicing and practicing. यदि कोई व्यक्ति भगवान की विधि पूर्वक हमेशा पूजा करता है, अर्च विग्रह की पूजा करता है, सुबह समय से उठ के मंगल आरती करता है, तो वह भक्ति में उन्नति कर सकता है. So carrying on in this way, when you become advanced in Krishna consciousness, your natural tendency will be how to preach. और जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है तो वह स्वाभाविक रूप से प्रचार करना चाहता है. So long as you do not develop this tendency for preaching, you will simply remain a Kanishta Adhikari. और यदि कोई व्यक्ति ये चीज प्रचार करने के लिए अपने अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं करता, वह तब तक कनिष्ठ अधिकारी ही रहता है. You do not know how to receive elevated devotees and you do not know how to do good to others. वह नहीं जानता कि कैसे उत्तम अधिकारी भक्त को आदर देना चाहिए और ना ही किस प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए. Lord Chaitanya's mission is not to keep people on the Kanishta platform, especially those born in India. He says, yes, you recite that. महाप्रभु कभी भी किसी भक्त को कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर ही नहीं देखना चाहते और खासकर कि वह लोग जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है. Bharata Bhumita Manusha Janma Haila Yara Janma Sartaka Kari Karapara Upakara. Should I repeat the verse? That's all right. You don't have to translate that. We gave it. I'm just adjusting things. I forgot to adjust things before. Okay, this is the principle, para upakara, because everyone is suffering. तो यह एक सिद्धांत है परोपकार, क्योंकि जो हर व्यक्ति इस दुनिया में बहुत ज्यादा सहन कर रहा है. So a Kanishta Adhikari can be engaged in diligently worshipping the deity. जो कनिष्ठ अधिकारी है, इसलिए जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको हम अर्च विग्रह की सेवा में लगा सकते हैं. But he must gradually become engaged and elevated to Madhyama Adhikari. और फिर धीरे धीरे लेकिन उसको ये सेवा करते करते मध्यम अधिकारी के स्तर तक आना ही पड़ेगा. Another symptom of a Kanishta Adhikari is that he is infatuated by material qualifications of so-called great materialistic persons. Can you please repeat, Mataji? This is the 11th canto again. Another symptom of Kanishta Adhikari is that he is infatuated by material qualifications of so-called great materialistic persons. Material qualifications of the great materialistic persons. How do we understand? Okay, so basically, let me try and put it in normal English. So the Kanishta Adhikari sees materialistic qualifications as being very important, and people who are materialistically successful being very important. Okay. तो जो कनिष्ठ अधिकारी है वह भौतिकतावादी लोग और उनके अंदर जो गुण होते हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण समझता है. So therefore he gets upset when the Madhyama Adhikari criticizes the non-devotees of the Lord. और इसीलिए जब मध्यम अधिकारी अभक्तों की निंदा करता है तो कनिष्ठ अधिकारी परेशान हो जाता है. Madhvacharya says such a person, because of his rudimentary faith in Krishna, is considered a devotee, but he is called Bhakta Adama, the devotee on the lowest standard. तो मध्वाचार्य कहते हैं कि क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो भगवान में विश्वास है वह दृढ़ होता है तो उसे भक्त तो कह सकते हैं, लेकिन फिर उसे ऐसा भक्त कहा जाता है जो नीचे स्तर का होता है. If such materialistic devotees follow the rules and regulations of deity worship, they will gradually be elevated to a higher standard and eventually become the pure devotees of the Lord.
और यदि कोई ऐसा व्यक्ति लगातार अपने आप को अर्च विग्रह की सेवा में लगाता है तो धीरे धीरे वह अपनी भक्ति में प्रगति करेगा और उस भक्ति में प्रगति करेगा, unless they commit offenses against other devotees, in which case their advancement will be checked. लेकिन उसके लिए उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अन्य भक्तों की निंदा ना करें। यदि वह अन्य भक्तों की निंदा करेंगे तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि वह भक्ति में उन्नति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Any devotee who believes that the holy name of the Lord is identical with the Lord is a pure devotee, even though he may be at the neophyte stage. जो भक्त यह मानता है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, वह ही शुद्ध भक्त माना जाता है, भले ही वो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे क्यों ना हो। Now, I think we read something about this as well last time. A devotee who believes the holy name of the Lord is identical with the Lord was going to make sure advancement towards Krishna consciousness, I think. In the last verse, we also read something like that. Yes, I can also remember a little bit. Okay. A Madhyam Adhikari is not only interested in deity worship, but he knows who is a devotee, who is innocent, and who is Bhagavan. जो मध्यम अधिकारी है वह सिर्फ भगवान में नहीं बल्कि यह भी जानता है कि कौन भगवान का भक्त है, कौन भौतिकतावादी है और कौन शुद्ध भक्त है। So he wants to develop his love for Krishna. और इसीलिए मध्यम अधिकारी जो है वह अपने अंदर कृष्ण प्रेम विकसित करना चाहता है। Avyarta kalam vasati nama gane sadaruchihi. A Madhyam Adhikari wants to see that not a moment is wasted in Krishna consciousness. और मध्यम अधिकारी ये ध्यान रखना चाहते हैं कि एक भी क्षण जो है वह कृष्ण भावनामृत के बिना ना जाए। One should attempt to move from Kanishta Adhikari to Madhyam Adhikari. और हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से उठकर मध्यम अधिकारी के स्तर तक आ पाए। Madhyam Adhikari means preacher. मध्यम अधिकारी का मतलब है प्रचारक। Unless one comes to Madhyam platform, he cannot preach. और जब तक कोई व्यक्ति मध्यम अधिकारी के स्तर तक नहीं आता वह प्रचार नहीं कर सकता। And Uttam Adhikari doesn't need to preach because he sees everything as good. और जो मध्यम अधिकारी है उसे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है। But we should not imitate the Uttam Adhikari. लेकिन हमें उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी चाहिए। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mentions that the duty of a Madhyam Adhikari is to extend himself as the right hand of the Uttam Adhikari, vowing to work for the benefit of others and offering to help distribute love of Krishna. एक जो मध्यम अधिकारी है उसको इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे वह किसी उत्तम अधिकारी का सीधा हाथ हो जो कि अब कृष्ण प्रेम बांटने में संपूर्ण हो और जो मासूम लोग हैं जो भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं उनकी मदद करने में सहाय रहे। Okay, so for Uttam Adhikari, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has described the process by which one becomes Uttam Adhikari. भक्ति विनोद ठाकुर और Bhaktisiddhanta Saraswati. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक तरीका बताया कि कैसे कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी के स्तर तक आ सकता है। If one is fortunate, he gradually becomes disgusted with the limited vision and activities of the Kanishta Adhikari. I think there is some network issue. Your voice is breaking again and again. Okay, if one is fortunate, he gradually becomes disgusted with the limited vision and activities of the Kanishta Adhikari. यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है तो वह धीरे धीरे जो कनिष्ठ अधिकारों की जो हरकतें होती हैं उनसे परेशान हो जाता है। And he learns to appreciate the expanded vision of the Madhyam Adhikari. और फिर वह धीरे धीरे मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर देखने लगता है। Who is able to recognize that every living entity should become a devotee of Krishna. और फिर उसको ये चीज समझ आने लगती है कि जो जीव है हर जीव को भगवान का भक्त बनना चाहिए। And he also recognizes that one achieves perfection
by following the footsteps of an Uttamadhikari. और उसको यह भी समझ आने लगता है कि जो एक व्यक्ति है उसको कृष्ण भावनामृत में उन्नति उत्तम भक्त के पद चिन्हों में चलने से ही मिल सकती है. As one's devotional service gradually intensifies and one repeatedly bathes in the dust from the lotus feet of a pure devotee, जैसे जैसे भक्ति में उन्नति होने लगती है और उत्तम भक्त की चरण धूलि मिलने लगती है, the harassment of birth, death, hunger, thirst, fear, and so on gradually cease disturbing the mind. और फिर उसके बाद धीरे धीरे से जो जन्म मृत्यु वगैरह की जो चिंता है वो उसे परेशान करने लगती है. And he quotes, we're quoting a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu. Alabdhe va vinashte va bhakshya chadana sadhane aviklava mahir bhutva harim eva diyasmarit. Even if a devotee is frustrated in his attempt to eat properly or clothe himself properly, he should not allow this material failure to disturb his mind. Repeat what This English is getting a little high. This is the 11th canto again. Even if a devotee is frustrated in his attempt to eat properly or clothe himself properly, he should not allow this material failure to disturb his mind. तो यदि कोई भक्त है जिसको अच्छे से खाने को नहीं मिल रहा या पहनने को नहीं मिल रहा, उसे ऐसे भौतिक फेलियर को अपना से निराश नहीं होना चाहिए. Rather, he should use his intelligence to remember his master, Lord Krishna, and remain undisturbed. और फिर उसको अपना दिमाग लगा के अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए. If one, as one becomes mature in this process of remembering Krishna in all circumstances, he is awarded the title Mahabhagavat. और यदि कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान को याद करता है और उनमें विश्वास रख सकता है, उसे महाभागवत कहा जाता है. Now, what we have now, we don't need to repeat that. There's some verses on Kanishta, Madhyam, and Uttam, but we've already covered these verses anyway. Here's one verse. Attachment and love is the indicator of advancement. Rata prema taratamye bhakta taratama ekadasa skande tara kariyache lakshana. A devotee is considered superlative or superior according to his attachment and love. जो भक्त है उसको उसका जो स्तर है वो इस चीज पे भापा जाता है कि वह उसको कृष्ण से कितनी ज्यादा आसक्ति और प्रेम है. Okay. Okay, a Vaishnava is one who has developed all good transcendental qualities. एक वैष्णव भक्त वो है जिसके अंदर सारी अच्छी आध्यात्मिक गुण होते हैं. Yes, sti bhagavati bhaktir bhagavati kinchana sarvas gunais tatra samasate sura harava bhaktasya kuto mahadguna or manoratena sati davatopahi. One who has unflinching devotion and devotional faith in Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifest. तो जिस व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण को लेके दृढ़ विश्वास है, उसके सामने सारी चीजें खुद ही प्रकट होने लगती हैं. However, he who has no devotion to the Supreme Personality of Godhead has no good qualification because he is engaged by mental concoction in material existence. लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान में विश्वास नहीं है, उसके अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं होता क्योंकि वह भौतिकता में लगा हुआ है. Okay, and then we have 26 qualities of a Vaishnava from Madhya Lila. Kripalo akrita doha satyasara sama nidosha vadanya mridu suchi akinchana sarvopakara santa krishneka sharana akama anihastira vijita sadguna mita boka pramata manada amani gambira karuna maitri kavi lakdaksha moni titikshava karunika Suhrida Sarvadaitinam
Ajata Sachavashanta Sadhava Sadhubhushana. So we've added 2 verses together here. Okay. Devotees are always merciful, humble, truthful, equal to all, faultless, magnanimous, mild and clean. You probably got it anyway from Kripalu Ankrityadoha Sachasara Sama. I need to Google. Okay, this is Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 2278. So, should I translate all of them? Yeah, you can just read through the translation of all of them. Okay. जो भक्त है वह सब पे करुणा भाव रखता है, वह किसी का दुश्मन नहीं होता, हमेशा सत्य बोलता है, सबसे समानता व्यवहार करता है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं ढूंढ सकता. What do we mean by magnanimous? How do we translate magnanimous and mild? उदार. भक्त बहुत उदार होता है, बहुत नर्म व्यवहार का होता है, हमेशा साफ रहता है, उसके पास कोई भी भौतिक वस्तुएं नहीं होती, वह सबके हेतु के लिए कार्य करता है, हमेशा शांत रहता है, भगवान पे निर्भर रहता है, कोई भौतिक इच्छाएं उसे सताती नहीं है, बहुत स्थिर रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, जरूरत से ज्यादा खाता नहीं है, भगवान की माया से प्रभावित नहीं रहता, सबको आदर देता है, अपने लिए कोई आदर की इच्छा नहीं रखता, बहुत गंभीर होता है, दयावान होता है, सबका दोस्त होता है, कवि होता है और मौनी होता है और हर चीज में सबसे आगे रहता है. Good, thank you. Okay, so now let's move on with the Acharya commentaries. So I'm skipping out things that are just duplicates. Mataji, can we focus on Acharya's commentaries in next class? You want to? Okay. Okay, we can do that. You want to stop now? Yes, Mataji. We can do that. But Mataji, I have a doubt. While reading this text, I just realized that we do not have, I do not have any of the qualifications which is required for initiation. I could not find even a glimpse of one of them. So how do we progress in spiritual life? Okay, so there was one point that I that I highlighted in the purport, and it said something like, if unless one wants to follow the orders of the spiritual master, he should not get initiated. There was a comment like that. Yes. So that's our first qualification. First qualification is that we're willing to follow the orders of the spiritual master. And it said to take initiation, we should practice some austerity. That means follow the 4 regulative principles and chant Hare Krishna. That's our austerity in Krishna consciousness in the age of Kali. We don't have to be greatly austere. But having that willingness and then actually bringing it into the plan and then following it is completely different. So what if we are not doing that? Well, I mean, basically the spiritual master is so merciful, he accepts us anyway. Yes. I was not in the least qualified when I took initiation. I didn't really even know what initiation was. And I had no idea what the proper relationship with the guru was. I mean, I recognized Guru Maharaj as somebody who was special. He was talking to me. He was giving class. He was looking at me, talking to me. He didn't look at anyone else and the people in the room. And so I recognized that, and I didn't understand what he was talking about, because he was talking about the 19th chapter of the first canto, where Dharma the bull gets attacked by Kali and is standing on one leg.
And he asked me something about that. And I said, I don't know. I did give him an answer. I gave him some ordinary answer. And then he said the answer was Dharma the bull. So I really had no idea. But anyway, but yeah, when I took initiation, I had no idea at all what it was all about. But the spiritual master, actually, you study even Srila Prabhupada also. Our spiritual master is following exactly the same mood as Srila Prabhupada. He was also initiating people who had no idea what they were getting into. Just because they were interested in serving him, they were showing some spark of interest. He was accepting them, and our spiritual master is following in his footsteps. So yes, and that way he also gets some bad results, some bad reactions sometimes, because he has to take on the karma of his disciples. And if his disciples misbehave after initiation, then that's not good either. But he does that just in order to please Krishna. So it becomes our responsibility to try to come to this Madhyam platform, because that's what we're learning from this, is that we must come to the Madhyam platform so that we know who to associate with. It's all very well knowing the 6 loving exchanges, but we have to also know who to exchange with. There was another part which I didn't find, and maybe it's still coming up in the next one, which was very interesting. It said that because was talking again about the materials qualifications. It was saying that because people with material qualifications are sometimes giving positions in Krishna consciousness that are quite high up. Therefore, they think they're very advanced, and people think they're advanced. So it's actually our responsibility to try very hard to come to the Madhyam platform, so we know who's who and what's what, and we properly recognize who is actually a devotee and who to associate with. There's no simple answer. We just, like it says here, we take up this process and we chant with faith, and we try very hard to avoid the 10 offenses, which is why we learn the 10 defenses and recite them every day. And in that way, we'll gradually make advancement, and then we'll come eventually to the stage of being qualified to be the disciple. And then we'll want to serve him by continuing to preach. Because even after being initiated, I'm not qualified, and Guru Maharaj is so merciful always. Yeah. But it's our responsibility to come to the platform. Yes. Yes, Mataji. Okay. Anyone else want to comment? Hare Krishna Nilakanta Priya. I see your face this time. Last time you didn't turn your camera on. Hare Krishna Mataji. Because I was working, and because I work on a train, I thought that it's going to disturb everyone, so I didn't want to have the voice on even. Okay. No. That's okay. Nice to see you. Lovely, thank you. It's great to be here, and this is amazing. I absolutely am thoroughly enjoying this. This is very nice. We can appreciate how much the acharyas have spent their lives meditating on these works by their previous acharyas. It's very wonderful. Yes, Mataji. Just before we did our session, I was speaking with Abhay Prabhuji, and he was doing a small Skype class with a few of us, and I think I joined him halfway, so I'm not really sure what his discussion was on, but it was something along the lines of how the mercy comes in the disciplic succession, and that Srila Prabhupada once said something along the line that he could only do more than his spiritual master, because the only reason he could do that was because he followed the instructions of his spiritual master. And then the example was given how even though Arjuna won the battle, Bhishma Dev was the greater warrior, because Arjuna, before the war began, he took the blessings of the acharyas and Bhishma Dev by shooting arrows at their feet, and they blessed him that, we bless you that you may win this battle. And had he not taken the blessings of his acharyas, then they would have cursed him to lose or something. But the whole idea around the discussion was that the disciples
can actually reap the benefits more if they simply follow the instructions of their spiritual master and gain the ability to perform the service more. Just like how the Manjaris, when they perform seva of garland making and give it to the gopis, who then offer it to Krishna, Manjaris are apparently hiding in the bushes and watching and are being satisfied. And the reason they feel the satisfaction is because Krishna is very happy. And then that happiness goes down like from the gopis to the Manjaris and so on. And so it's better to remain in that receiving the lowest state of receiving the mercy, but by following the instructions of the previous acharyas. So it was really nice Good. Thank you. to understand that. Good. All right. So shall we finish the program?